Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. sir. Very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, dear friends, very good afternoon to everyone. After lunch, many person might be feeling sleepy, right? Don't sleep in the class. वीडियो ऑफ करके आराम से सो जाना ना, कान में वीडियो लोरी की तरह बजता रहेगा. We have wonderful facility in the Zoom. You can switch off the video, then you can sleep, right? So today we will continue the discussion of nervous system and the frontal lobe and some disease like dementia, Alzheimer's and all, right? तो कल हमने बात की थी कि जब ब्रेन स्ट्रोक होता है, we have talked yesterday what's happening in the brain stroke. In the brain stroke, there is a poor blood supply to one part of the brain. हमारे ब्रेन के किसी भाग की ब्लड सप्लाई का कम हो जाना होता है. Sometime because of the high blood pressure, blood vessel rupturing. कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है. Sometimes there is a blockage. कभी कभी रास्ते में ब्लॉकेज हो जाता है, क्लॉट बन जाता है. Then person is getting brain stroke, right? हमने देखा है कि जिन लोगों को हाई बीपी होता है, आज की ही बात है कि यंग यंग 28 or 30 years male used to come in my clinic. He was coming from Just Dial. Just Dial, no, everyone know what is Just Dial. Suddenly, some different person came today. I asked, where is that guy? They told he expired. Expired? 30 years age? How expired? He was having high blood pressure and was not taking medicine since many days. अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो कंट्रोल में रखना जरूरी है. चाहे आप आयुर्वेदा से कंट्रोल करिए, आप पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करिए, आप होम्योपैथिक लीजिए, आप एलोपैथिक लीजिए, कुछ तो लीजिए या नेचुरली कंट्रोल करिए. So what is the challenge with the BP patient? Many patients are suffering with a high blood pressure and they are not taking BP medicine. Okay, it's not bad if they are not taking BP medicine, but they are not doing any other thing also to balance the BP. This is the bad thing. कि कुछ तो करो. आयुर्वेद में गोलियां आती हैं, मुक्तावटी आती है, अर्जुन. नेचुरोपैथी में कहते हैं टेक द soak the black pepper, sorry, black grapes in the water and take every morning. That is good remedy for the BP in the long term. Black kismis, yeah, even the pink kismis. Do something. So suddenly he told that BP was high for 4 or 5 days. And what happened? Because of the high blood pressure in the brain, there is a very small
blood vessels like our hairs. We can see the hairs. बाल कितने पतले हैं, इतनी पतली पतली नसें होती, ब्लड वेसल होती है हमारे ब्रेन में. Now there is intracranial pressure is high. The pressure in the brain is high, right? And suddenly some blood vessel getting ruptured. उसके साथ ऐसा ही हुआ. 5 दिन से बीपी की दवा नहीं खाई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, हॉस्पिटलाइज किया, 3 से 4 लाख बिल बना और एक्सपायर कर गया, राइट? And the many patient coming with a problem of stroke, mostly we have seen the patient was having a history of high blood pressure, but they stopped taking medicine. Oh, I will know, I don't want to take the medicine. I don't believe in allopathy, so I don't want to take the medicine. They are just reading, oh, allopathy having side effect, so don't want to take the medicine. But they don't do anything else also. Sometimes, yes, person might go in coma. कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. आप कुछ ना करो तो कुछ तो करो, अगर एलोपैथी की दवा बंद करते हो तो. So when the blood vessel getting ruptured, that is called brain stroke, right? Brain stroke. It's a very common cause. So when someone getting up in the morning, and many times people are getting up in the morning with a headache, it might be your intracranial pressure is high. बीपी चेक करवाओ एक बार. आप सुबह सुबह उठे, पूरी रात लेटे थे. लेटने से क्या होता है कि ब्लड को ज्यादा स्पीड से मूव करने की स्पेस मिल जाता है. In the lying down position, BP is comparatively high. And many person are getting up in the morning, oh, severe headache. Every day if you are getting headache, it might be intracranial pressure is high. So check the BP. Sometimes BP is normal, still you might have intracranial high pressure. कभी कभी तो BP normal होता है, तभी इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई हो सकता है. हर जगह का प्रेशर अलग अलग होता है. आंखों के अंदर का प्रेशर अलग है, ब्रेन के अंदर का प्रेशर अलग है, ब्लड का प्रेशर अलग है, लिम्फ का प्रेशर अलग है. एवरी प्रेशर इज डिफरेंट and they should be in their own limit. And the most common cause of the brain stroke is rupture of blood vessels inside the brain, right? Nowadays it's very common with the young people. Young लोग भी बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर में जी रहे हैं और ग्रस्त हो रहे हैं, राइट, इन बीमारियों से. In the last class, we were discussing this condition. So look at here. This is a very common cause. Before any patient is getting some critical condition, we need to work in advance. हमें पहले से ही काम करना होगा. So, हमें पता है कि हमने बात की थी स्टार्ट हमारे फ्रंटल लोब के बारे में. We are discussing about the frontal lobe. The frontal lobe, it is located anterior in the brain, anterior portion of the our brain. Okay. So when it get damaged, कब हमारा frontal lobe डैमेज होता है? ठीक है, जब ब्रेन स्ट्रोक होता है या कोई सडन ब्रेन ट्रोमा होता है. ब्रेन स्ट्रोक होता है तब हेमरेजिक कंडीशन होती है या इस्चेमिक कंडीशन होती है. हेमरेजिक मतलब बहुत सारा ब्लड जमा हो जाता है. Too much blood is accumulated inside the brain in the frontal lobe. And ischemic मतलब there is a blockage in the vessels who supply the brain. Okay?
तो ब्लॉकेज आता है हमारी आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई को आगे नहीं बढ़ने देती, तब इनफैक्ट स्ट्रोक आता है ब्रेन का। अभी ब्रेन हेड ट्रोमा होता है तो आपका सिर कहीं पे टकराता है या यू हैव इंजरी इन द हेड। इफ आगे की ओर से इंजरी आ रही है, आपकी इंजरी आगे से है, तो आपका फ्रंटल लोब अफेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज में एक्सीडेंटल केसेस में ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो अफेक्ट होगा, तो उस पर कंप्रेशन आएगा। ठीक है, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है माइट बी दे गेट रप्चर। जो ब्लड वेसल्स है वो ट्रोमा की वजह से फट सकती है, अगेन ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से हमारे ब्रेन में फ्रंटल लोब डैमेज होता है। पहले हमने देखा कि दो तरह से डैमेज होता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक होगा या फिर एक्सीडेंटल केस। अभी ये तो हो गया कि हमारी आर्टरी और हमारे फिजिकल ट्रोमा की बात। ठीक है, बट व्हाट हैपन व्हेन आवर सेल्स, ब्रेन सेल्स गेट डैमेज, हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो क्या होता है? सो डिमेंशिया। डिमेंशिया एक कंडीशन है, उसके अंदर अल्जाइमर नाम का एक डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वन साइड इज अ नॉर्मल ब्रेन और नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर, another side the Alzheimer brain. So the size of the Alzheimer brain is get reduced, वो shrink हो गया है। So the size of the Alzheimer brain it get reduced, वो कम होती जाती है। अल्जाइमर में ये क्यों होता है? Because in the Alzheimer our cells of the brain are get death, उनकी डेथ हो जाती है, हमारे ब्रेन सेल्स धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं। तो अल्जाइमर में नॉर्मल से ज्यादा श्रिंक ब्रेन देखने को मिले। ठीक है, अभी वो श्रिंक ब्रेन हो गया है। सो इट लीड टू मैनी एबनॉर्मलिटी। अगर वो फ्रंटल लोब में आपको अल्जाइमर डिसीज है, फॉर एन एग्जांपल फ्रंटल लोब में आपको अल्जाइमर डिसीज है, आपके आगे की ओर, आपके सिर का आगे का हिस्सा है उसमें फ्रंटल लोब में अल्जाइमर डिसीज है। ठीक है, आपको बाहर से तो वो नॉर्मल ही दिखे, पर जो भी डैमेज हो रहा है वो इनसाइड हो रहा है, इनसाइड द स्कल, डैमेज इज अकर इनसाइड द स्कल। सो मेनली द डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स इज अकर इन द अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिजीज में हमारे ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है, तो इसको कहते हैं अल्जाइमर डिसीज। वो हमारे ब्रेन के कोई भी पार्ट में हो सकता है, फ्रंटल लोब ले लो, पैराइटल लोब ले लो, ऑक्सीपिटल लोब ले लो, टेम्पोरल लोब ले लो, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन। ओके, तो द डिमेंशिया कंडीशन है, उसके अंदर बहुत सारे डिजीज है। उसमें ये चीज है कि फर्स्ट है अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज में पर्सन चीजों को भूलने लगता है। ओल्डर एज पीपल में ये क्यों कॉमन है? क्योंकि व्हेन एज इज प्रोग्रेस, जब आपकी उम्र बढ़ती है, साथ साथ आपके बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, एज वेल एज मेंटल चेंजेस भी आते हैं। तो इसकी वजह से ये चेंजेस कभी कभी बहुत हाई पीक पे चेंज होने लगते हैं। तो कुछ कुछ पर्सन में ये हाई पीक पे जाते हैं, तब अल्जाइमर डिजीज होता है। तो देखिए अभी हमने बात की कि अल्जाइमर के बारे में। जब भी हम बात करते हैं, whenever we talk about the Alzheimer's, what is Alzheimer's, है ना? So there is a one disease called dementia. Dementia is the bigger word. Have you heard the dementia? Dementia सुना है सबने? Dementia का मतलब है भूल जाना, forgetfulness. Now what are the causes of dementia? फिर कहते हैं भाई पार्किंसन के पेशेंट को भी डिमेंशिया हो सकता है।
एल्जाइमर के पेशेंट को भी डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया मीन्स भूलना, भूल जाना। इज इट क्लियर? Forgetfulness. So nowadays many patients are coming to us, can you treat the dementia? Yes. So first we should find out what is the dementia. डिमेंशिया का मतलब है कि एक सोशल एबिलिटी कम हो जाती है व्यक्ति में, राइट? देयर इज अ डिक्रीजिंग द सोशल एबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि अभी कोई आपके पास आया, आपसे बात की, आपने मुस्कुरा के बात की, आपने कहा हेलो हाउ आर यू, यस यस, नाउ द पर्सन कमिंग बैक आफ्टर 10 minutes you forgot immediately. Oh, second thing, you like आप जैसे मेरे पास आए, आपने बोला हेमंत जी आई वांट टू कंसल्ट विद यू, और मैंने बहुत अच्छी तरह से बात की, खिलखिला के बात की, खुशी से बात की, है ना, और आपको लगा कि बीबी के में फ्रेंड, और आप फिर 2 दिन के बाद आए, मैंने कहा कौन हो, हु आर यू? So this has become little strange because I have met with person many times. He discussed with me something very nicely, and suddenly when I reached on next day, he was asking, "Who are you?" So this is dementia. डिमेंशिया में क्या होता है कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है दैट इज मेमोरी लॉस बिकॉज ऑफ समथिंग इज डिजनरेटिंग इनसाइड द ब्रेन। कुछ तो ब्रेन में डिजनरेट हो रहा है। फिर और भी बहुत सारी मतलब ब्रेन संबंधित द प्रॉब्लम, ऑल द person will not able to do the plannings, not able to organize the things, means the all multiple problems which is connected with the brain। कई सारी ब्रेन की कंफ्यूजन वाली, डीओरिएंटेशन वाली कंडीशन आ जाती है कि वो किसी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, कुछ प्लान नहीं कर पाता, ऐसे चलता रहता है फिर, राइट? सो द मीनिंग ऑफ डिमेंशिया वी कैन टेल द पर्सन इज हैविंग, या वी कैन टेल फॉगी माइंड। फॉगी माइंड मतलब एक ऐसा माइंड हो गया कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब क्या होने वाला है। द डिमेंशिया, the Alzheimer's is the patient of Alzheimer's disease is getting dementia. So we can tell the most common cause of the dementia is Alzheimer। कि कहते हैं कि हमारे ब्रेन में प्रोटीन जमा हो जाता है, हमारे ब्रेन की सेल में प्रोटीन जमने लगता है जो हमारे उन ब्रेन की सेल को थोड़ा सा स्लगिश कर देता है, स्लगिश। So there is a deposition of the protein inside the brain that is called something apolyprotein, I think, because we have read in the, you know, so that protein is get deposited on the nerve cells, on the brain, on the, and that is affecting our memory, right? APOE, the shortcut name of that protein, APOE, that get deposited on the nerve cells। So वो हमारी फॉरगेटफुलनेस को बढ़ा देता है। अपोलीप्रोप्रोटीन, राइट? APOE, अपोलीप्रोप्रोटीन, समथिंग लाइक दैट। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में APOE। दैट प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड विद एल्जाइमर्स डिसीज, राइट? सो पीपल जिनको एल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, आप समझिए कि उनके ब्रेन में some protein is getting deposited which is making their brain sluggish, then they are suffering with the dementia, means forgetful। But in the acupuncture we are doing the treatment of dementia also। हम इसका भी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर पाते हैं, right? We can do the treatment with the scalp acupuncture also। We can do the treatment with the auricular, with the facial reflexology, with the body acupuncture, master, everywhere we have points, whatever we can do the treatment of dementia। फिर डिमेंशिया की कई कैटेगरी होती है, डिमेंशिया के कई प्रकार होते हैं, राइट? अलग अलग टाइप होते हैं डिमेंशिया के, बट ऑल टाइप्स आर टारगेटिंग टुवर्ड द फॉरगेटफुलनेस, राइट? सो लाइक एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन पेशेंट आल्सो सफरिंग विद द डिमेंशिया, है ना? सो ये हो गया। फिर एक डिसीज सुनी होगी आपने, हचिंसन डिसीज सुना? हचिंसन, दे आर लेस कॉमन डिसीज। तो पेशेंट इज सफरिंग विद द डिमेंशिया। तो डिमेंशिया मीन्स फॉरगेटफुलनेस। जैसे उदाहरण के लिए इसको एल्जाइमर है, इसको पार्किंसन है, इसको हचिंसन। These all people might suffer with dementia। Dementia is one symptom, right? Dementia is one symptom। कि भूल कौन सकता है भैया? पार्किंसन वाले को भी भूलने की बीमारी हो सकती है ना?
या फिर एल्जाइमर्स वाले को भी भूलने की बीमारी हो सकती है, या फिर हचिंसन डिसीज वाले को भी भूलने की बीमारी होती है। हचिंसन इज द डिसीज दैट इज कनेक्टेड विद द, और कभी कभी ट्रॉमा लगा, कहते हैं ना कि किसी को चोट लगी, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि चोट लगी और भूल गए पूरा, अपनी अपनी हीरोइन को भूल गए, है ना, फिर वापस चोट लगी तो याद आ गई, देखिए बीमारी। सो अवर ऑल द मूवीज आर फुल ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स हीरो को जब भुलाना है तो एक सिर पे चोट मार दी, और वापस याद लाना है तो एक चोट और मार दी तो पुराना याद आ गया, है ना। मैनी मूवीज वी हैव सीन। एक संजीव कुमार की कौन सी मूवी है जिसमें वो भूल जाता है सब, फिर एक चोट और लगती है तो याद आ जाता है। और ये अभी जो आई थी नई मूवी, कौन, शाहरुख खान की कौन सी मूवी आई थी, शाहरुख खान की मूवी थी ना, क्या नाम था उसका, वो एक्सीडेंट होके भूल जाता है ना। मैंने आमिर खान तो खतरनाक डिमेंशिया। देयर आर टू मेनी मूवीज विद डिमेंशिया। दैट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया मींस सिर पे चोट लगी और आप अपनी बीवी को भूल गए। बहुत बढ़िया है ना, कौन हो, है ना। So that is dementia. So dementia might be traumatic also. So when Parkinson disease might cause dementia, Hutchinson disease, then be Alzheimer's disease, trauma means accident. और आजकल तो डायबिटीज वालों को भी डिमेंशिया होने लगा है। डायबिटीज वालों को like after the 15 years of the age of the diabetes, like someone is suffering with the diabetes for 10 years, and the 15 years after that forgetfulness starts. So that is called metabolic dementia. ऐसे नाम देते जाओ, metabolic dementia। और है कि अगर किसी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो भी भूलने लगता है, that is also dementia, nutritional dementia. So what is dementia? The meaning of dementia means forgetfulness due to some reason. अब आपको खाना नहीं मिला, अब भूल रहे हो चीजों को, तो खाना दे दोगे तो ठीक हो जाएगा। अब मूवीज वालों को तो दूसरी चोट लगने पे डिमेंशिया ठीक ही हो जाता है उनका। लेकिन पार्किंसन, एल्जाइमर्स, हचिंसन, दे आर द परमानेंट डिमेंशिया, राइट। उनको चाहे चोट मारो चाहे कुछ करो, if we do the acupuncture, then we can bring their we can do lots of good things, we can improve these patients in certain percentage. But remember one thing, ट्रीटमेंट की बात तो हम एक्यूपंक्चर में करेंगे, ये तो फिजियोलॉजी की बात। यहाँ तो बात ये है, पेशेंट इज कमिंग टू यू, डॉक्टर आई एम सफरिंग विद डिमेंशिया। अब आप सोच रहे हो यार डिमेंशिया क्या है, यू शुड नो व्हाट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया मींस द ग्रुप ऑफ मतलब डिमेंशिया मींस फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया मींस थिंकिंग एबिलिटी गॉट डिक्रीज, सोशल एबिलिटी गॉट डिक्रीज। आपकी डेली टू डेली लाइफ में जो आपको प्लानिंग करनी है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, वो आपका घट जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमेंशिया। यस्टरडे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कई लोगों को पुरानी बातें याद रहती है। दे विल रिमेंबर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर मैरिज, व्हाट हैपेंड व्हेन द किड्स वर स्मॉल। पुरानी बातें याद रहती हैं, जवानी की बातें, वो कहीं पिकनिक पर गए थे या बच्चों के साथ उन्होंने कुछ हैप्पी मोमेंट एंजॉय किए थे, बट अभी भूल गए। Whatever happening right now in the daily life, they are forgetting, right? So this is the dementia, right? So we can do the treatment of the dementia while doing the treatment of the brain very successfully, right? अब आपने पूछा कि ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा ब्रेन की सप्लाई को इंप्रूव करना होगा। बता करो, आप बताइए। अल्जाइमर डिसीज है और ये फ्रंटल, हाँ तो करता हूँ, बोलिए आप बोलिए। अब देखिए ब्रेन की अगर ब्लड चलोगे, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जैसे कहते हैं ना ब्लड डेफिशिएंसी, तो कई बार हमने देखा है कई फीमेल्स में जब ब्लड की कमी होती है तो फॉरगेट, उनको चाबी रखी कहीं और भूल गई कहाँ चाबी रखी, है ना। दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी डिमेंशिया। यार ताला लगाया कि नहीं लगाया, यार गैस बंद की कि नहीं की, होता है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी टेम्परेरी एंड वेरी मिनिमल डिमेंशिया
वो जिगिसा जी के साथ होता है, बहुत गड़बड़ है जिगिसा जी, ऐसा मत करिएगा। डू नाड़ी शोधन प्राणायामा, बिकॉज इमीडिएटली यू विल, ये तो सबके साथ होता है, ये तो मेरे साथ भी होता है। जैसे मैंने अभी क्लास ली और मैं वीडियो को अपलोड करना भूल जाता हूँ, फिर लोग याद दिलाते हैं तो अपलोड करता हूँ कई बार ऐसा। इट माइट हैपन विद एनीवन। ओके, सो लुक एट हियर। द फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। अभी ये पता चल गया कि फ्रंटल लोब कहाँ पे है, हमारे स्कल के आगे के एरिया है, ब्रेन का जो आगे का पोर्शन है, दिस इज द फ्रंटल लोब। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, क्या फंक्शन है हमारे फ्रंटल लोब, ठीक है। तो जो फ्रंटल लोब है वो कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। जैसे हमने पहले बताया था कि हम राइट साइड के फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी की एक्टिविटी उसको कंट्रोल करेगा। अभी राइट साइड का फ्रंटल लोब है तो वो लेफ्ट साइड के बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, पर कौन सी एक्टिविटी, जो वॉलेंटरी एक्टिविटी। वॉलेंटरी मतलब आपकी इच्छा से हो रही है वो एक्टिविटी, आपको लगता है कि आपको कोई चीज उठानी है तो ही वो काम करेगा। जैसे कि आपके राइट साइड के लंग को ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे ब्रीथ करना है, आपको ऐसा है कि नहीं लंग अभी स्टॉप कर ब्रीथ करना है, तो ऐसा नहीं है। फ्रंटल लोब इज कंट्रोलिंग द वॉलेंटरी एक्टिविटी, जो हम वॉलेंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है वो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। पर कौन से साइड की, अपोजिट। जैसे राइट साइड का फ्रंटल लोब लेफ्ट साइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड का फ्रंटल लोब है वो राइट साइड की एक्टिविटी को कंट्रोल। सेकेंड फंक्शन इज कंट्रोल द स्पोकन स्पीच, मतलब जो हम बोलते हैं हमारी जो स्पीच है उसको कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। जिसका फ्रंटल लोब अफेक्ट हो जाएगा वो बोल नहीं पाएगा, या उसकी स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, सेंटेंस नहीं बना पाएगा, पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड फंक्शन, तीसरा फंक्शन है हमारे फ्रंटल लोब का, कंट्रोल द इमोशन, concentration, attention, initiative and judgment. So first, controlling the emotion, they controlling the emotion of our body, okay? The emotion of our human being, okay? It is controlled by the frontal lobe, okay? आप हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, ठीक है, तो ये सब इमोशन है आपके, वो कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। कॉन्सेंट्रेशन, कभी आप पढ़ रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वहां पे आपका कितना कंसंट्रेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा, फ्रंटल लोब। अटेंशन, लेक्चर चल रहा है, आप कितना उसको अटेंटिवली कैचअप कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंटली आप उसको फोकस से अपने आप में ले रहे हो उस लेक्चर के नॉलेज को, ये कंट्रोल कौन करेगा, फ्रंटल लोब। इनिशिएटिव, कोई भी वर्क है, कोई भी टास्क है, उसको इनिशिएटिव एक्टिविटी होती है, जैसे कि ये काम मुझे करना है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ये काम, तो ये जो इनिशिएटिव है वो फ्रंटल लोब करेगा। जजमेंट, कोई भी चीज है कि ये करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है, तो किसी भी चीज को लेके आप जजमेंट ले पा रहे हो ना कि नहीं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो ये सब एक्टिविटी कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब। The fourth function of the frontal lobe is perception of the touch, pain and temperature. Perception मतलब कैरी करना, एब्जॉर्ब करना, तो वो टच, जैसा हमने इसको छुआ, ठीक है, तो ये टच कौन कैरी करेगा, फ्रंटल लोब। पेन, पेन हो रहा है आपको, शोल्डर में पेन हुआ, ठीक है, इसके सेंसेशन कौन कैरी करेगा, फ्रंटल लोब। टेम्परेचर, गर्म है कि ठंडा, ये कौन कैरी करेगा, सेंसेशन, फ्रंटल लोब। सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब्स। तो देखिए, जब हम एक चीज मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि हम स्कल्प एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्पीच की दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
There are two types of the speech disorder. Number one, the problem of speech after paralysis. कई लोगों को पैरालिसिस के बाद स्पीच प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? Yeah. Number two, speech problem which is not connected with the paralysis, which is connected with the mental retardation. Okay, there are two types of the speech problem. Are you agree? Delayed speech, delayed milestone, forceps delivery. कई बच्चे जो जन्म से पैदा होते हैं ना, उनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, या उनका मानसिक रूप से मंद जो बच्चे होते हैं उनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है. एक वो अलग कैटेगरी है. और एक व्यक्ति जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी लेकिन सडनली पैरालिसिस हुआ और स्पीच इंपेयर्ड हो गई, ये एक अलग घटना है. दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि मेंटल रिटार्डेड वाला बच्चे का मानसिक विकास ठीक नहीं, उसे स्पीच की प्रॉब्लम है. लेकिन पैरालिसिस वाला व्यक्ति का माइंड तो एक्टिव है, अभी भी सुपर एक्टिव ही है. पैरालिसिस होने के बाद किसी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी में फर्क नहीं पड़ता. Intelligence remains same even after the paralysis. So there are two types of the problems of the speech. Okay, now in our brain there are two speech area. हमारे ब्रेन में दो स्पीच एरिया होते हैं. एक होता है ब्रोकास एरिया, ब्रोकास, which is connected with the speech problem happening post paralysis. कि हमें पैरालिसिस, किसी को पैरालिसिस हुआ और उसकी स्पीच चली गई, तो किसके कारण गई? हमारी लेफ्ट ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे कहते हैं ब्रोकास एरिया. सो दिस एरिया इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, ब्रोकास एरिया इन द लेफ्ट ब्रेन. गॉट इट? सो दैट इज कनेक्टेड विद द स्पीच, दैट इज कनेक्टेड विद स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. राइट? तो हमने देखा कि व्यक्ति को, इफ द पर्सन इज हैविंग ब्लड क्लॉट इन द लेफ्ट ब्रेन, देन पैरालिसिस विल बी हैपनिंग ऑन विच साइड? टेल मी, कौन सी तरफ पैरालिसिस होगी? अगर इफ द क्लॉट इन द लेफ्ट ब्रेन, पैरालिसिस विल बी ऑन द राइट साइड. And if the clot in the left brain but frontal lobe is involved, then speech problem will also be there. अगर लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट बना, लेफ्ट ब्रेन में ब्लड वेसल रप्चर हो गई, if the rupture of the blood vessels in the left brain, if there is a problem in the left brain, if there is involvement of the left frontal lobe, then person will get paralysis on the right side. उसे राइट साइड का पैरालिसिस होगा, लेकिन उसकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाएगी. लेकिन if the person is getting clot in the right brain and then paralysis will be on the left side, speech will not be impaired. उसकी स्पीच इंपेयर्ड नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज दिस ब्रोकास एरिया लोकेटेड इन द लेफ्ट ब्रेन, नॉट इन द राइट. इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आती है? So in that way, in the acupuncture, what we are telling, we are putting the Broca's area here in the scalp acupuncture. From the ear, we are going little up and little forward, and we are reaching on the frontal brain. And here we are putting the point of Broca's area, which is because of the paralytic post-stroke speech problem. और अब हम बात करते हैं एक दूसरा व्यक्ति है जो बचपन से मानसिक रूप से मंद है, मेंटल रिटार्डेड है, और सेरेब्रल पाल्सी. द पेशेंट हु इज सफरिंग विद द सेरेब्रल पाल्सी और द डिलेड माइलस्टोन, मानसिक रूप से पैदा हुआ बच्चा, मानसिक रूप से मंद पैदा हुआ बच्चा, or Mongolism is the disease. These all kids are having some speech problem. They never got paralysis. It's not connected with the Broca's area. It's connected with some other speech area of the brain that is called Burney cage area. Burney, I will show you. Burney means W-E-R. Burney, W-E-R-N-I. Burney cage area. This Burney cage area is not in the frontal lobe. No.
This burning cage area is not connected with the frontal lobe, it's connected with the temporal lobe, which is above the ear. टेम्पोरल लोब। तो जब हमारे पास दो व्यक्ति आते हैं, दोनों को स्पीच की प्रॉब्लम है, एक को है पैरालिसिस के बाद पॉइंट लगेगा आगे, एक को है ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी पॉइंट लगेगा कान के पीछे। वो हमारा स्पीच एरिया होता है, फ्रंट स्पीच एरिया और द बैक स्पीच एरिया। द फ्रंट स्पीच एरिया इज ब्रोकास एरिया, द बैक स्पीच एरिया इज वर्निकेज एरिया, both area located on the left side and useful for speech disorder. Broca's area is the part of frontal lobe, but the Wernicke area is the part of temporal lobe. जो कान के ऊपर जो है लोब उसका पार्ट है। Is it clear or not? ये बात समझ में आती है? डिफरेंशिएशन, दो प्रकार की स्पीच प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन है ये, राइट? कि हमारे पास कोई स्पीच की प्रॉब्लम लेके आए, हमने कहा कि भाई स्पीच एक समान है ना, ऐसा नहीं है। सो द फ्रंट एरिया इज कॉल्ड मोटर एरिया एंड द बैक एरिया इज कॉल्ड सेंसरी एरिया। सो पैरालिसिस मींस द प्रॉब्लम ऑफ मोटर नर्व्स, सो वी आर ट्रीटिंग द मोटर एरिया और द ब्रोकास एरिया, एंड द बैक एरिया इज कॉल्ड सेंसरी एरिया। सेंसरी, फिर हम इसको और मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मोटर एफेजिया, यानी आगे का है मोटर एफेजिया। जो पैरालिसिस के बाद होता है वो मोटर एफेजिया, जो ब्रोकाज एरिया से कनेक्टेड है वो मोटर एफेजिया, और जो बचपन से है, जो जन्म से है, सेंसरी एफेजिया, राइट? Nowadays, what's happening with the age also, many people might develop the sluggishness in the Broca's area, so they will develop tremors, writing tremors. In the writing tremors also, because Broca's area is connected with two conditions, the front area is connected with the two conditions. Number one, speech. Number two, fine writing. आपको साइन करना है, साइन देखो एकदम फाइन होते हैं, ऐसे ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऐसे घूमे फिर ऐसे से गए, जो भी है। एक आपके साइन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर, you anyone can withdraw the money, right? Sign is having very great value. आपके साइन की बड़ी वैल्यू होती है। That sign is coming from the Broca's area. A speech which I'm speaking right now, coming from the Broca's area, right? So there are two different areas. So many mental retarded kids or the cerebral palsy kid or the many kids suffering with some genetic disorders and having the problem with the speech since the childhood, then we don't touch Broca's area, no need. तो Broca's area को touch करने की जरूरत ही नहीं है. Then we do the treatment on the Wernicke area which is in the back side. Is it clear? So this is a differentiation. तो जब हम frontal lobe की बात करते हैं, when we talk about the frontal lobe is connected with our intelligence, with our concentration, right? इसीलिए हमने कल भी बताया था, तिलक लगाते हैं to develop the awareness, to make the wonderful planning. Our personality depend on the frontal lobe. Definitely. जब आपको कोई देखेगा तो सबसे पहले आपका चेहरा ही देखेगा वो, है ना? आपने कभी गौर किया है, हम जब भी किसी को देखते हैं उसका चेहरा ही देखते हैं डायरेक्टली, and on the face also we look at the eyes, है ना? हम आंखों को देखते हैं। आप खुद देखिए, अगर मैं ऐसे बैठ के आपको बोलूं कुछ, देखो आज हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे और देखो, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा? Because eyes make the connections. भले ही चश्मा लगा लो लेकिन eyes make the connection, right? If we close the eyes ना, so this is personality who is reflecting from the frontal lobe. आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मस्त है, मतलब आपका फ्रंटल लोब बड़ा मस्त है, तो हम किसी की तारीफ करें ना, बोलेंगे यार योर फ्रंटल लोब इज सुपर, मींस यू आर वेरी इंटेलिजेंट, your personality is very good, your emotional balance is very good, your writing तो खैर डॉक्टर की बिगड़ ही जाती है, but your writing as a doctor very good. है ना? आप कितने लोगों की राइटिंग कौन सी वाली है ना, जो कीड़ा मकोड़ा
इंक में डुबो के पेपर पे छोड़ दिया, वो डॉक्टर की राइटिंग हो जाती है, बट फॉर द डॉक्टर इट्स गुड, राइट? सो दिस इज ऑल द फ्रंटल, राइट? नाउ आफ्टर द फ्रंटल लोब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोब. फ्रंटल लोब हो गया, बाकी okay, so wait for a while. So look at the few more things about the frontal lobe here. यहाँ पर हम कुछ और भी बातें फ्रंटल लोब के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे. So the frontal lobe, okay, the different when you get a damage to your frontal lobe, these are the symptoms. Okay, मतलब आपका frontal lobe अभी डैमेज हो गया है तो ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं. लोअर लिबिडो. So lower libido means low sexual desire. आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है. We can see here in India and the outside India, people are getting suffering with the hormonal imbalances, and they are not having sexual desire, which is making their family life worst, right? So it's not only about the sexual. So lower libido means low sexual desire. So this is also because of the damage of frontal lobe, right? Now, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि the person will be suffering with the weakness of one side of the body or one side of the face. डिप्रेशन. ओके, डिप्रेशन हो जाएगा. जैसे कि हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है हमारा फ्रंटल लोब. ओके, जब फ्रंटल लोब अफेक्ट हो जाएगा तब हमें डिप्रेशन या एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं. And also person will get very easily distracted. उसका फोकस नहीं होगा. The person will not able to concentrate and will get very easily distracted if your frontal lobe is not in the good position. बिहेवियर चेंजेस. ठीक है, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाएगा. लाइक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना या बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो ये सब बिहेवियर चेंजेस. तो ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारी थर्ड आई होती है, थर्ड आई इज द पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब. So like in the Yoga Shastra, it has been clearly mentioned, third eye is the place of the great energies, and on the third eye, this is the place of awareness. Agya chakra is the place of awareness. हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये हमारा अवेयरनेस का सेंटर है. So suppose one person is very very wonderfully aware, it means the energy is flowing upward. जब हमारी थर्ड आई में ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो करती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी ऊर्जा बहुत शानदार लिफ्ट हो रही है. बट सडनली इफ द एनर्जी इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन द थर्ड आई, दैट गिव एंगर. अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है, कोई व्यक्ति सडनली गुस्से में आ जाता है, इमीडिएटली द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम द थर्ड आई. तो ये सारे फ्रंटल लोब से कनेक्टेड है. अल्टीमेटली वेदर यू टॉक अबाउट द अवेयरनेस, आप चाहे अवेयरनेस और कंसंट्रेशन की बात करें, और यू टॉक अबाउट द एंगर एंड डिस्ट्रैक्शन, दीज ऑल थिंग्स कनेक्टेड विद द फ्रंटल लोब. ये सारी चीजों का संबंध हमारे फ्रंटल लोब से है, राइट? So now we will moving to the next part of the brain. अब हम ब्रेन के अगले पार्ट की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, एंड द नेम ऑफ दिस पार्ट इज पैराइटल लोब. The parietal lobe is located from the behind the frontal lobe. हमारा जो frontal lobe खत्म होता है उसके पीछे का ये जो हिस्सा है, this is the parietal lobe. तो पैराइटल लोब हमारा जैसे फ्रंटल वेल समाप्त हुआ तो हमारा पीछे ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द हेड इज पैराइटल लोब. यानी हम कहते हैं कि हमारा जहां पर ये सहस्त्रार चक्र है, दिस इज द पैराइटल लोब. सो फ्रंटल लोब इन द फ्रंट साइड, देन this is the parietal lobe. On the parietal lobe only the vertex of the head is coming. हमारी सिर का टॉप parietal lobe पर ही आता है, right? Is it clear? हाँ, इसमें नहीं है क्या?
मतलब ये अभी है ना। ये सब क्या नहीं? बता दिए सब, ये बता दें। ब्लड सप्लाई बात की है। So, before moving to another look, okay, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी देती है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वो यहाँ से आती है, ठीक है? हमारे नेक के साइड पे आपको पल्स मेजर होंगे। जैसे आप यहाँ पे अपनी 2 फिंगर यहाँ पे रखोगे, आपको पल्स मेजर होंगे, बीट फील होगा, ठीक है? तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे जाती है और मिडल सेरेब्रल आर्टरी बनाती है। ये बात हो गई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। अभी पीछे से वर्टेब्रा से आती है वर्टेब्रल आर्टरी। ये वर्टेब्रल आर्टरी आगे जाती है और पहले मेन 2 ब्रांच देती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो the anterior cerebral artery, the posterior cerebral artery, and the middle cerebral artery. These 3 arteries are the main blood, which give a main blood supply to our brain. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है? अभी ये तीनों का काम अलग अलग है, वो अलग अलग एरिया ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है? देखिए, जैसे कि हमें ये पता है कि स्ट्रोक आता है, ठीक है? पर्सन को स्ट्रोक आता है, हेमरेजिक मतलब आपकी ब्लड वेसल्स है वो फट गई है। When your blood vessel is get rupture and blood is coming out from the vessels, okay? So in the report you are able to see ACA infarct या ACA hemorrhage, ACA hemorrhage या infarct, ठीक है? infarct मतलब कि क्लॉट हो जाना, वहां पे कोई क्लॉट। हेमरेज होता है मतलब वो वाले पोर्शन में से ब्लड निकल रहा है। तो आपको ये पता चल जाए कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो डैमेज हो गई है, एसीए हेमरेज मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हेमरेज। अभी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मेनली हमारे फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है। तो हमारे फ्रंटल लोब को सप्लाई करने वाली आर्टरी है एसीए, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ से आगे से जाती है, देखिए गले के आगे से जाती है, अंदर जाती है और अंदर के हिस्से को सप्लाई करती है। हमारे ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है फ्रंटल लोब का, उसको सप्लाई करती है। पर हमारे ब्रेन का जो ये बाहर वाला पोर्शन है, जो कि हमारे कान के सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको सप्लाई करने के लिए कौन आता है? इसको सप्लाई हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी करती है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी यहाँ को सप्लाई करती है और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अंदर के पोर्शन को सप्लाई करती है। हमारे ब्रेन के अंदर को पोर्शन को सप्लाई कौन करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। वो डीपली कनेक्टेड होती है, ठीक है? और वो पीछे से आके आगे की ओर जाती है यहाँ से, जैसे कि वर्टेब्रल आर्टरी का आप कोर्स देख रहे हो, ठीक है? तो वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाता है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से अंदर की ओर जाती है और यहाँ पे सप्लाई करती है। तो हमारे लेटरल भाग, लेटरल पोर्शन, सबको पता है कि हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन के बाहर की ओर वाला हिस्सा लेटरल हुआ और मिड लाइन से नजदीक वाला हिस्सा मीडियल साइड हुआ, ठीक है? तो जो लेटरल पोर्शन है उसको सप्लाई करेगी हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पर देखिए ये, हालांकि आर्टरीज के नेम हम बहुत सारे लोगों ने इन आर्टरीज के नेम नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हम मुख्य रूप से बड़ी बड़ी आर्टरीज का नेम ही पढ़ते हैं, राइट? लेकिन जब आप रिपोर्ट देखेंगे कभी भी किसी पेशेंट की, और उस रिपोर्ट में ये सब मेंशन होता है कि ब्लॉकेज कौन सी आर्टरी में, तभी नॉलेज काम आती है। लेकिन कुछ चीजें बहुत
सामान्य है जो हम सबको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा, आप में से कितने लोग योग करते हैं? योगासन कितने लोग करते हैं? कभी कभी भी करते हो, मतलब भले ही साल में एक ही बार करते हो, करते हैं कोई? करते हैं ना? हाँ भैया, हम सुमित जी भी करते हैं साल में एक बार। है ना? बढ़िया बढ़िया। योग में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं हम ब्रह्म मुद्रा। सुना है आपने? ब्रह्म मुद्रा। देखो, ब्रह्मा जी इज हैविंग 4 हेड। ब्रह्मा जी इज हैविंग 4 हेड, राइट? With the name of Brahmaji, there is a Brahma Mudra. In the Brahma Mudra is the wonderful process for high BP. ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास कोई व्यक्ति करता है, उसे कहते हैं कि 3 दिन के अंदर आपको दिखेगा बीपी में रिजल्ट्स। यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन 3 days एंड सम टाइम ऑन फ्रॉम द डे 1। एंड इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज ब्रह्म मुद्रा? ब्रह्म मुद्रा क्या होती है? इन द ब्रह्म मुद्रा मीन्स वी हैव टू टेक अवर हेड टू द राइट साइड, we have to take our head to the left side, we have to take our head to the up, and we have to take our head to the down, but we have to do this entire movement in the slow motion. ये पूरे मूवमेंट हमें, जैसे आपने स्लो मोशन वाले देखा है ना, स्लो मोशन में करना है। So the question comes to our scientific mind might ask, why, what is the meaning of do this like, do this like, do this like, do this? What is the connection of BP with this movement? Then practically this research has been published that this is a very wonderful stimulation of the internal carotid artery. ये हमारी जो internal carotid artery है, जो heart is pumping the blood, then it's coming to the subclavian artery, then it's going to the internal carotid artery, then reaching to the brain. Sometimes there is a occlusion in the internal carotid artery. हमारे गर्दन में जो पाई जाने वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कुछ भी रुकावट हो तो व्यक्ति को चक्कर आते हैं। Person is suffering with the giddiness, vertigo, dizziness, or there is a high BP, and this is a wonderful remedy for the giddiness, vertigo, dizziness, as well as the high BP. So do this entire movement in the very slow motion. आपको पूरी की पूरी गति एकदम स्लोली करना है। लेट्स स्टार्ट ऑल टुगेदर। चलिए सब लोग करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में मुड़िए। जो सबसे धीरे मुड़ेगा दैट विल बी द विनर। द पर्सन हु इज मूविंग स्लोएस्ट दैट विल बी द विनर। जो जल्दी मुड़ जाएगा वो लूजर है, ध्यान रखिएगा। अभी भी गर्दन 45% ही हिली है। You have to move your neck very slowly, very, very slowly. Stay for a while in the final posture. Be there for a while. Long and deep inhalation. Then coming back in the middle with the slow motion. Then continue to move to the other side. एक बार हम बीच में आ गए, हमें रुकना नहीं है, रिदम को बनाए रखना है और दूसरी ओर गर्दन को ले जाना है। We have to turn the neck to the other side. Wonderful movement for relaxing our nervous system, anxiety, overthinking, neck pain, dizziness, vertigo, and the high blood pressure. The movement should be very much slow. Doing the slow movement is also a very challenging task. मूवमेंट को स्लो करना इतना आसान नहीं है। स्लो करने के लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। एकदम से गर्दन मोड़ लेना एकदम आसान है।
V in the final position for a while, long and deep breathing. This is the wonderful stimulation of the internal carotid artery coming back in the center. Now going up, remember the person suffering with the cervical spondylosis, if taking the neck suddenly up, might get vertigo. जिस व्यक्ति को गर्दन में तकलीफ है, स्पॉन्डिलोसिस, अगर उसने गर्दन ऊपर की ओर मोड़ी तो उसे थोड़ा चक्कर भी आ सकते हैं. मेक श्योर दैट यू आर डूइंग वेरी स्लो मूवमेंट. Take twisting and taking the neck upward and backward. And if you are suffering with the cervical problem, you can avoid this position or do very minimal. In the final position, stay for a while. Then coming back slowly and gently. So this is called Brahma Mudra. Turning the head to the foreside like Brahma ji having forehead. आप कराइए, बहुत शानदार है. This is the research based. Very wonderful. Looks like very simple. But there is a great stimulation of the carotid artery, which is supplying your entire brain. बीपी के लिए बहुत शानदार. आप करा के देखिए. The person suffering with a high blood pressure, suddenly there is too much pressure in the brain and chances to get rupture of blood vessels. But with the help of this, we will calm down the carotid plexus, we will calm down the carotid artery, then the vertebral artery, anterior, middle, posterior, all the arteries. Right? You do this and also as advised to your patient. और कभी आपको देखना, आप YouTube में भी डाल दो ब्रह्म मुद्रा आसन, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर तो बहुत रिसर्च हुई है, इसके बहुत पेपर पब्लिश हुए हैं ब्रह्म मुद्रा के. और ये दिस इज द क्लियरली मेंशन व्हाई द ब्रह्म मुद्रा इज गुड फॉर बीपी, बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन द कैरोटिड आर्टरी हु इज पासिंग फ्रॉम द थ्रोट. नहीं तो गर्दन को मोड़ने से क्या फायदा है ना. तो इसके साथ ही आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देते हैं. अब हम मिलेंगे कल. थैंक यू सो मच. कंटिन्यू सेशन टुमारो. हैव ए ब्लेस्ड डे. सी यू.